क्वार्टरली अर्निंग्स, हर अर्निंग्स कॉल पे हर मैनेजमेंट AI यूज करती रहती है. After 20 years, AI has replaced that .com. I have chosen these sectors as per my competence of understanding. Any other specific reason? एक तो इंडिया पाकिस्तान में डिफेंस आपको और क्यों लगता है? No, defense तो होना ही चाहिए. Every country should be self-reliant. These things will continue to happen. These disturbances will continue to happen now. But पापा आपको ऐसा नहीं कि डिफेंस एक फैड है? No, it is not true. जैसा भी लेटेंट शो, आपको पता है इसके बारे में कुछ? क्या गवर्नमेंट का? लेटेंट शो के बारे में, you know? No. समय राणे का लेटेंट शो. समय राणे का लेटेंट शो था. उसने आई थिंक कुछ जोक्स उसराक किए थे. वो थोड़ा A रेटेड कॉमेडी होता है, जो एक काफी हद तक बनता भी है सेंस. बट वहीं पे इफ यू कंट्रोल इट, तो you end up controlling everything. What is the limit? I think जितना आप restrict करोगे ना, उतना ही excitement होती है to enter. Guys, welcome to another Goira show. I think this is the episode 4. I'm not wrong? Yeah, I think 4th. And we are going very strong. हमें बहुत मजा आ रहा है. And आज का topic बड़ा ही interesting लिया है कि what sectors are we excited about for 2025? ये question तो given है. This is very important for all of us to know. Yeah. And वो हम बात करेंगे और इसमें काफी in depth में जाएंगे. काफी आपके questions भी हैं, वो भी लेंगे. And just to introduce, my father Rahul Goela has 40 years of experience in stock markets and is from SRCC. He's a CA and I have been in stock markets since 2010. I'm an MBA and no SRCC. No college. After 2010, I directly came into stock markets, and Dad was one of the main pushing reasons who pushed us to take stock markets as a career and take it very serious because he saw that हम passionate थे उसके लिए. And वो भी I think आपने पढ़ाना शुरू किया था, इसलिए we came to know about it very बचपन से. And yeah, so it's going to be interesting conversation. हो सकता है कुछ agreements हो, कुछ disagreements हो. Comment box में आपको बताना आपको कैसा लगा. And if you like it, if you don't like it, tell us. Be sure to tell us in the comment box. Okay, so the top sectors of 2025. So Dad, top 5 sectors 2025. Go. Should we talk about the sectors? They may be good according to me, but maybe not according to you. So 100%. How do we choose these sectors? Should I talk about that first, or just name the sectors? Let's name the sectors first. Okay. फिर मैं उसमें भी आऊँगा. मैंने उसमें भी ले रखा है. My according to me, my top sectors are the sector which relates to capital markets, money management, and all. And what I mean is, we have all the AMCs, we have all the insurance companies, we have the stockbrokers, NBFCs, CDSL, NDLS, NDSL, NSC, BSC. So all these capital market group of companies is number one sector because you see in the advanced countries there is as much as 60 to 70% participation from the people. Yeah. Right now we are floating around 15-20%. I think this is the upper limit. BSC NSE? No, if there is participation in equity market, then trading will happen. BSC will earn, NSC will grow bigger, CDSL will get more demat accounts. इसमें पापा मैं थोड़ा सा मैं मतलब again I would want to be the devil's advocate here कि जैसे अब मुझे पर्सनली ऐसा दिस माय पर्सनल अगेन ओपिनियन की बात है, फैक्ट कुछ है नहीं यहाँ पे. BSC NSE का मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट ओनली प्रॉफिटेबिलिटी. वो थोड़ी वेलफेयर भी आ जाता है कि गेट मोर पीपल इन द स्टॉक मार्केट. वो सोशलिस्टिक एंगल भी आता है जो होना बहुत जरूरी है. BSC NSE will also get listed. So if they are listed, it's a business. But उनका मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट, दे आर नॉट aggressive. No, what I mean to say that volumes will generate. The volumes will grow. They have to grow. So all this sector, you know, the growth is what growth we are seeing. We are seeing the last 5 years. Sorry to cut you again. हाँ. Even when BSC NSE ट्रेडिंग को तो टाइट कर रहे हैं, जब ट्रेडिंग पे टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, ट्रेडिंग पे ट्रांजैक्शन किस करने, तभी I think जितना आप रिस्ट्रिक्ट करोगे ना, उतना ही एक्साइटमेंट होती है to enter, because they are just making the framework more scam proof. They're making the framework more friendly. So if they're making the framework more small investor friendly, they'll feel encouraged to come if they're safe. So that is all okay. That's all okay. These are hard measures they take, but for the long term. ठीक है. तो पहले आप लोगों ने कैपिटल मार्केट जिसमें BSC, NSE, CDSL, because the participation will grow as much as 60-70%. That means the market has a potential to grow 3-4 times in the next 6-7 years. Right. Now, number 2 sectors is the Make in India concept. I'm calling this whole sector as such. इस sector में I'm including defense also, railways, manufacturing, textiles, machinery, capital goods. Because you see, if you want a pen here. Yes. Because what you I mentioned defense. What I'm talking about defense, manufacturing, textiles,
steel, capital goods, ठीक है, got it. everything. Because Make in India concept is about self-reliance. You know, we should be self-reliant. We should not be dependent on others. Because एक theme अब चल पड़ी है. Last 40 years से theme थी globalization की. हाँ जी. Where India specializes in one thing, US specializes in one thing. We are buying each other's stuff. Yeah. But after COVID and after these Ukraine wars and Gaza wars, I think हम लोगों को realization हो रही है, सबको हो रही है, मेरे दिल में भी यही feeling है that we should be self-reliant in everything. अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हर फील्ड में होने लगे तो एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है. एक जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट, द शेयर ऑफ जीडीपी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट शुड नॉट बिकम लाइक अमेरिका जहाँ पे प्रैक्टिकली मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं, आप सब डिपेंडेंट हो बाहर के लोगों से. तो सो दिस इज वन थिंग एंड देयर इज अ लॉट ऑफ इंसेंटिव्स फ्रॉम गवर्नमेंट. So this is second sector. The third sector, according to me, is renewable or alternative energy. Renewable or alternative energy means ke from away from the dirty oil and the coal, we have to move towards solar energy, wind energy and nuclear energy. ठीक है. ये इंडिया के लिए बहुत पावरफुल सेक्टर बनेगा. मतलब हमारी इंडिया में तो एनर्जी क्राइसिस है. हम लोग 80% ऑफ आवर ऑयल इज इम्पोर्टेड. सबसे बड़ा आउटफ्लो हमारे डॉलर्स का, हमारे रिजर्व्स का ऑयल में है. तो अगर इसको हमने रिप्लेस कर दिए और इंडिया में देखो सन है, विंड है, सी है, हिल्स है, प्लेन्स है, हीट है, कोल्ड है. इट्स अ कॉम्बो ऑफ अ परफेक्ट क्लाइमेट. तो यहाँ पे गवर्नमेंट से बहुत इंकरेजमेंट मिल रही है फाइनेंशियली, मैन्युफैक्चरिंगली. तो ये नंबर 3 पॉइंट पे मैं इसको रखूंगा. ठीक है, तो मैं कंक्लूड करता हूँ. पहले यू मेंशन कैपिटल गुड्स. Capital goods, no. Capital market. Capital markets. Sorry, capital market. जहाँ पे you would say exchange, BSE, NSE, CDSL, and NSDL, NBFCs, stockbrokers, AMCs, all these things. Would you include insurance also in this? Yes, insurance also. Insurance भी include करो. ठीक है. फिर उसके बाद आपने बोला मेक इन इंडिया, जिसमें आपको डिफेंस, मैन्युफैक्चरर, कैपिटल गुड्स, रेलवेज सब इसके अंदर आता है. इसमें मैं आई वांट टू डिग डाउन डीपर, है ना, एक एक इसमें करना चाहता हूँ मैं. फिर रिन्यूएबल एनर्जी एंड ऑल्टरनेट एनर्जी. Because this is ये चीज का अगर हमारे 80% सब्सिट्यूट आ जाता है हमारे घर में इसका, we made it. ठीक है. अब मैं आपको बताता हूँ उसमें मेरा क्या. Can I share mine? Yeah. सबसे पहला आई वुड से एनर्जी. ठीक है, ये आई थिंक आपका मेरा एकदम सेम आ रहा है. एनर्जी मैं इसलिए बोलूंगा बिकॉज रिन्यूएबल तो पापा है, बट बताऊँ इफ आई लुक एट द फैक्ट्स, नो, और मैं तो उसमें काफी स्टडी कर रहा हूँ अभी रिसेंटली, तो मैं काफी फैक्ट्स से लकीली वाकिफ हूँ अभी इस एनर्जी पे. आई डोंट थिंक ऑयल इज गोइंग एनीवेयर वेरी सून. तो आने वाले 10-12 साल में हमें ऑयल चाहिए होगा. हाँ, कम होगा, बट वी कैन नॉट फिनिश इट. कम होता रहेगा, हल्के होता रहेगा. वी कैन नॉट फिनिश. एंड ये तो फैक्ट है कि इंडिया के लिए पूरे सेल्फ इंटरेस्ट में कि ऑयल खत्म हो जाए, इसलिए हमारा तो पूरा वो क्या होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, वही ठीक हो जाएगा, कंप्लीटली इन द चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, दुनिया चेंज हो जाएगी. तो फॉर मी नो आई वुड से एनर्जी. व्हाई? जिसमें एनर्जी में आई वुड से रिन्यूएबल एनर्जी भी आएगा, ग्रीन एनर्जी भी आएगा, ग्रीन हाइड्रोजन भी आएगा. और आने वाले टाइम पे ये तो ईवी चार्जिंग पूरा एनर्जी का गेम है. ठीक है. फिर डेटा सेंटर्स एनर्जी गेम है. एआई बढ़ रहा है, एआई के लिए डेटा सेंटर्स चाहिए बहुत हैवी. ठीक है. उसके बाद मुझे डेटा से कुछ भी चाहिए, आजकल ऑटोमेशन हो रही है, डेटा सेंटर्स चाहिए. एनर्जी फ्लो इज गोइंग टू बी मैसिव. फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पॉइंट शायद में थोड़ा डिफरेंट होगा. इंफ्रा में मैं बहुत बिलीव करता हूँ. एंड वैसे इंफ्रा आई मीन पाइपलाइंस, आई मीन केबल्स, आई मीन क्या कहते हैं, रोडवेज, buildings, airports, companies like L&T, companies like Siemens, I feel कि इनका तो कोई रोक नहीं सकता है. और चाहे रेलवेज बढ़े, डिफेंस बढ़े, ये सब इनको बढ़ना ही है. Then I would say health. ये भी पापा मैं इसको बहुत मेजरली बिलीव करता हूँ. पहले हेल्थ तो यही था कि यार ये तो बढ़ता नहीं है, स्टैग्नेंट ही रहा है. It has always been stagnant. Always. मतलब कॉन्ट्रा ही रहा है इंडेक्स के. Yeah. बट अब पापा मुझे लगता है अर्बनाइजेशन इतनी बढ़ी है ना, और पूरा कोविड के वैक्सीन लगे हैं, और इतनी खराब पोल्यूशन, अनफॉर्चुनेटली वी आर ब्रीथिंग एयर. मतलब मैं तो पूरा आई थिंक यूथ दिल्ली के इस हाई एंड वो पोल्यूशन इंडेक्स में निकाला है. द हेल्थ सेंटर is now become a focus. 100% government. एक हमारी एजुकेशन लेवल बढ़ गया, पेइंग कैपेसिटी बढ़ गई, पर कैपिटा बढ़ गया. तो वी लाइक नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू आई स्टे हेल्दी वंस यू रिच. अब आजकल प्रोटीन कितना चल रहा है पापा, इफ यू नोटिस. मतलब आई थिंक एफएमसीजी प्रोडक्ट बेच हैं, उसमें प्रोटीन का लगा दो हाई प्रोटीन. इट्स हम ही आप और मैं प्रोटीन की बातें कर रहे हैं घर पे के नीचे राउंड, वैसे कि प्रोटीन ज्यादा नीचे खाने में. एंड फाइनेंस सेक्टर पापा, आई फील बैंकिंग मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अगर मैं अभी शॉर्ट टर्म में भी देखूँ ना, 1 साल के लिए मैं बड़ा ऑप्टिमिस्ट हूँ बैंकिंग, बिकॉज आरबीआई लिक्विडिटी बढ़ा रहा है,
रेपो रेट को कम कर रहा है, 90 डे क्रॉस पीरियड्स निकाल रहा है, और जो पहले आरबीआई तक खींचा था ना, तो लगा मुझे कि छोड़ा है, जो दिख ही रहा है। तो आई फील बैंकिंग इस साल तो फट के बाहर निकल सकता है। या ट्रू। आपको उनमें से जो आपके इसमें कोई 1 साल के कोई है, जब आप बोलोगे 1 साल के जो मैं देख रहा हूँ? सी 1 साल में आई वुड से कि ये जो डिफेंस सेक्टर है ना, बाय द वे डिफेंस में भी हम बोल रहे हैं, यस defense will continue to go because after this disturbance with Pakistan, after we seeing the Ukraine, Russia, this and that, एक तरह की आंखें खुल गई हैं कि I am asking myself, I hope my country has enough defense equipment to manage itself. अगर मेरे को फील हो रहा है तो ये क्वेश्चन तो हो ही रहा होगा गवर्नमेंट में, should we depend on foreign countries to support us in a war? No. पर नहीं बताओ, हाँ आई एग्री, आजकल टाइम से चेंज हो गया। बताओ मतलब आपको इजराइल की जो हर्मीज 900 यूज होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड इन हैदराबाद, जो हमने वो यूज किए थे ड्रोन्स, मैन्युफैक्चर्ड इन बैंगलोर, इजराइल के साथ टाइप था, बट जो कंपनी जो इंडिया में बनाई थी उसमें 26% टेक अडानी डिफेंस का है। वहीं पे ब्रह्मोस मिसाइल मतलब लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। Could have imagined No, I think we are very soon going to become exporters of our defense equipments. Yes, we are, but इसको बढ़ाना बहुत जरूरी है। And any other specific reason? एक तो इंडिया पाकिस्तान में डिफेंस आपको और क्यों लगता है? No, defense तो होना ही चाहिए. Every country should be self-reliant. These things will continue to happen. These disturbances will continue to happen now. But पापा आपको ऐसा तो डिफेंस एक फैड है। 10 साल पहले डिफेंस की बात नहीं थी। मैं जब 2012, 13, 14 की बात करूं, मैं 15 में जब मार्केट्स में डिफेंस सेक्टर तो मैं सुनता भी नहीं था, कुछ मतलब था ही डिस्कशन। तो व्हाई आपको लगता है डिफेंस सेक्टर इज अ फैड? No, it is not. Why? It is like protecting your own country. You have to be ready to protect your own country. तो 2015, 2010 में सब बातें क्यों नहीं थी? नहीं होती because we didn't see war around that time. We didn't see so many wars around that time. अब तो there's a full-fledged war. यूक्रेन से कितना equipment use हुआ ग्लोबल में, global equipment use होगा. No, इसमें ना use हो equipment. That is a good thing. But we should be ready with everything and everything, whatever it takes. And I think we have realized it. We will be government बहुत आगे बढ़ के इसमें पैसा खर्च करेगी. I think the aim government का ये होना चाहिए कि हम exporters बन जाएं. गवर्नमेंट यही एम कर रही है, राजनाथ सिंह का तो अगर ये होगा, अगर ये है, तो जितने भी 10-12 कंपनीज हैं, ये most of them are PSUs, this and that, they are the masterpieces of stock markets for tomorrow. पापा आई वांट टू ना, अभी रेलवेज में थोड़ा डिप करना चाहता हूँ। रेलवेज इनएफिशिएंट एज हेल, कोई डाउट की बात नहीं है इसमें। अगर मैं रियलिटी में देखूँ तो टिकट डर्टी है, हाँ वो उसको मेंटेन करना भी कुछ आसान काम नहीं है, बट द ओनली आई फील द एयर फेयर भी चढ़ा इसलिए बिकॉज ऑफ रेलवेज, वरना एयर ट्रैवल से नहीं चढ़ता, राइट? तो डू यू थिंक ये ठीक हो भी सकता है कि इसमें कुछ फायदा है इन्वेस्ट करके? क्योंकि यहाँ पे कोई कंपटीशन ही नहीं है, यहाँ पे कुछ इनके पास स्कोप, मतलब देयर इज नो बैरियर फॉर देम, देयर इज नो कंपटीशन, देयर इज नो अर्जेंसी फॉर टू ग्रो। गवर्नमेंट, मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट बजट बढ़ा देती है तो हम इन्वेस्टर सेंटिमेंट से ऊपर उठ जाता है, बट क्या एक्चुअली में यू थिंक ऑन ग्राउंड रेलवेज अच्छा करेंगे? और जबकि माइंड यू, जबकि रेलवेज 2022 और 23 में बहुत अच्छा किए थे बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट बजट, बट जैसे ही इस साल गवर्नमेंट बजट की बात हुई तो नथिंग हैपेंड टू रेलवेज। No, I you know what I'm saying is the entire economy is growing. रेलवे सबसे बड़ा हमारा सेक्टर है, राइट? सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे मैक्सिमम पीपल आर ट्रैवलिंग बाय दिस. यस, तो ट्रैवल तो बढ़ना ही बढ़ना है इंडिया में, बढ़ना ही बढ़ना है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ती जा रही है, राइट? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जा रहा है, राइट? तो वी आर आल्सो नाउ विलिंग टू पे फॉर बेटर सर्विसेज, राइट? ठीक है ना? अब जैसे वंदे भारत चलती है, अब मेरा जैसे टिकट यहाँ से आई एम गोइंग टू धर्मशाला, आई एम पेइंग 2000 रुपीज वन वे फॉर अ टिकट इन वंदे भारत व्हिच इज एग्जीक्यूटिव क्लास ईसी. आई एम विलिंग टू पे इट. क्या 10 साल पहले सोचते कोई ईसी जाने में? नहीं, पहले तो 20 साल पहले तो एसी में जाना ही बहुत बड़ी बात होती थी. सो देयरफॉर कस्टमर का बेस बढ़ता जा रहा है, कस्टमर की पावर ऑफ स्पेंडिंग बढ़ती जा रही है. रेलवे संभाल सकता है? बिल्कुल संभाल लेगा, बिकॉज एक प्राइवेटाइजेशन बहुत बड़ा फैक्टर रेलवेज में आता जा रहा है. प्राइवेटाइजेशन इन रेलवेज इज हैपनिंग इन अ बिग वे. उसके सिग्नल सिस्टम्स हैं, फूड केटरिंग है, अंदर मेंटेनेंस है. तो it's not a combination of PSUs now. It's a combination of private and government play. उसमें पापा आई थिंक ये भी एक अच्छी चीज है कि जब से रेलवेज को IRFC, IRCTC ने डिवाइड किया ना, इट्स बिकम बेटर. और दूसरे भी IRFC दूसरे प्रोजेक्ट्स भी उठा रहा है, नॉट ओनली रेलवेज बट
दूसरे प्रोजेक्ट्स में उठा रहा अब तुम स्टेशन देखो रेलवेज के 20 साल पहले और आज के में देख लेना। मैं वहां गया था पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में जगह है 6-7 years बैक। है। बिलीव इट और नॉट हर्ष, उस स्टेशन के फर्श को देख के मैं अपना फेस ठीक कर सकता था। मैं खुद हैरान रह गया था। अब पंचमढ़ी इज अ सेमी हिल स्टेशन, तो उधर कोई डस्ट वस्ट ये सब पॉल्यूशन वगैरह नहीं है, बट स्टिल टू हैव दैट काइंड ऑफ अ थिंग, इज इट इम्पॉसिबल? फिर मैं एक ट्रेन आई, मैं तुम्हें लाइव आंखों के सामने मुझे याद आ रहा है, एक ट्रेन आती है वहां से, ऑटोमेट जैसी रुकती है, एक एनजीओ काइंड ऑफ अ बॉडी थी वहां पे जो ट्रॉली खींची लाती थी कोच के पास, सबको फ्री पानी पिला रही है। वाओ, मैं हैरान रह गया। एंड दिस वाज वन ऑफ द मॉडल स्टेशंस दैट द गवर्नमेंट वांटेड टू बिल्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो यूरोपियन रेलवेज है ना, उसको पीछे छोड़ देंगे हम। दैट्स अ बोल्ड स्टेटमेंट। मुझे ऐसा लग रहा है कि रेलवेज में हम घूमने जाएंगे, you know, तो railways no doubt is a huge asset backed thing। 5 रुपए एक टिकट बढ़ाने से कैन यू इमेजिन क्या प्रॉफिट्स में चेंज आता होगा। एंड वी आर विलिंग टू पे 5 रुपीज छोड़ो, वी आर विलिंग टू गिव अ 10% इंक्रीज इन फेयर इफ दे गिव अस गुड सर्विसेज, राइट। तो इसमें स्कोप बहुत है, स्केलेबिलिटी बहुत है। राइट राइट। अब स्टॉक मार्केट के एंगल से आए तो पिछले 2-3 साल में बहुत मैडनिंग बुल रन चला है इसमें। जब इतना क्रेजी यूफोरेटिक बुल रन चलता है तो कुछ साल शेयर चलते नहीं है वो, क्योंकि वो ओवरबॉट हो जाते हैं, सब जनता ने खरीद लिए होते हैं। फ्रॉम द स्मार्ट इन्वेस्टर्स दे गो टू द रिटेल इन्वेस्टर्स। वो एंगल एक शॉर्ट टर्म वाला है। अगर हम 5 से 10 साल के आगे देखें, मैंने से शॉर्ट टर्म मतलब 1-1.5 साल टाइप्स, 6 महीने 7 महीने 10 महीने 1 साल वालों, ठीक है। तो अगर हम 3-4-5 साल देखें तो रेलवेज इज अ ब्यूटीफुल सेक्टर, डिफेंस इज अ ब्यूटीफुल सेक्टर, राइट। दोनों गवर्नमेंट मैनेज हैं, दोनों में प्राइवेटाइजेशन होती जा रही है, दोनों में प्राइवेट सेक्टर एंटर करता जा रहा है। सो गवर्नमेंट इज अलाउइंग दिस सेक्टर टू डेवलप विद प्राइवेट मनी आल्सो। यस इट इज। और प्राइवेट तो इसलिए भी बहुत बेनिफिशियल है, रेलवे जितना बेटर हो जाता है ना, उनका काम बहुत इजी हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मतलब उनका ट्रांसपोर्टेशन एवरीथिंग वुड बी सुपर। ये तो एक साइकिल है, जैसे इंडिया की ग्रोथ हो रही है, रेलवेज हैज टू ग्रो। अच्छा, अब चलो लेट्स गो सेक्टर बाय सेक्टर। एंड वन मोर थिंग, हम कहते हैं कि रेलवेज इतना इनएफिशिएंट है, क्या एफिशिएंसी इंप्रूव होगी? एक वो लेते हैं एग्जांपल, पीएसयू बैंक्स का लेते हैं। 2000 से लेके 2010 तक पीएसयू बैंक्स केप्ट गेटिंग वर्स। वो लोगों को पैसा देते थे, आई वुड से 2015-16 तक एनीबॉडी कुड बोरो मनी फ्रॉम एनीवेयर। पीएसयू पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं था टू असेस द रिस्क कैपेसिटी ऑफ द बोरोवर, शायद इंटेंट भी नहीं थी। Now look at the system. We have a professional management. Yeah. We have high-tech softwares being incorporated. Yeah. We have platforms on the phone for payment and all. Zero NPAs are the lowest as on date. Yeah, for the past decade में देखूंगा तो one of the lowest. नीचे आते रहे हैं। NPAs and gross NPAs are same as efficient banks like HDFC. Yeah. Then why is the pricing difference? ये PE पे होते हैं 6 पे और अच्छे बैंक्स होते हैं 15, 16, 17 PE पे। Do you mean to say PSU banks? ये हमारा माइंडसेट चेंज होता रहेगा। एक बार इनकी क्रेडिबिलिटी से हो रही है, थोड़ी एस्टैब्लिश 3-4 साल होती रही, तो why will I see PNB as different from HDFC Bank? थोड़ा सा तो फर्क रहेगा। HDFC is ultra professional, but you're right. Actually, but the gap will decrease. It has decreased because पहले क्या था कि सरकारी बैंक मतलब अरे भाई पासबुक अपडेट कराते रहो, बट अब they've got good systems। अगर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूंगा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करूंगा, सिंडिकेट बैंक की बात करूंगा, बैंक ऑफ इंडिया की बात करूंगा, इन सबके अच्छे डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ऐसा नहीं कि कुछ आउटडेटेड है। I would say HDFC sometimes looks outdated in front of them. No, it may be these PSUs may be looking far behind, but I'm saying they are on the curve to improve. Okay, so we'll catch up. We are talking about the good investment for the next decade, for 5 years. This sector is here to stay. ठीक है। तो railways we talked about defense, ठीक है, we talked about banking also। banking में तो मैं काफी personally मैं तो बहुत उसमें optimistic हुई। Next, I want to talk about Papa sector जिसमें लोग optimistic नहीं, that is the FMCG sector. I agree with you. इसमें जो जनरल रिटेल स्मॉल इन्वेस्टर होते हैं वो कभी भी एक्साइटेड नहीं होते इसमें।
हम्म, क्योंकि इसमें एक जनरल सेल्स ग्रोथ होती है 10-12%, 5%, 6%, और जो प्रॉफिट ग्रोथ होती है वो भी 10-12% होती है. तो really speaking, is there a much difference between a fixed deposit in a bank and these? They grow at a little higher rate, growth rate. Let's say 10% growth rate हो रही है, बैंक देता है आपको 8%. इसमें रिस्क भी ज्यादा नहीं है. अब साबुन बनाने में लेक्स, हिंदुस्तान लीवर्स है, लेक्स बना रही है, मंदी हो तेजी हो, यू गोना यूज इट. ठीक है ना. बट इन ट्रैवल, पैसे आपके रिसेशन चल रहा है इकोनॉमी में, शायद यू मे स्टॉप ट्रैवलिंग, बट वो चीजें यूज होगी ना. तो इट इज अ वेरी स्टेबल ग्रोथ. तो अकॉर्डिंग टू एफएमसीजी सेक्टर, गुड और बैड? No, it is some amount of money should be kept in FMCG as a hedge. Like people say, na, gold is a hedge. मैं भी एग्री करता हूँ. एफएमसीजी, आई हैव एफएमसीजी स्टॉक्स, मैं पूरा आपको पता ही है. Let's keep Nestle and all. They have given the best returns. नहीं, जैसे आई हैव हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर है. ओके, एफएमसीजी नहीं, आई थिंक एफएमसीजी में हिंदुस्तान यूनिलीवर ही है, शायद थोड़ा बहुत नेस्ले है, बट मेजरली हिंदुस्तान यूनिलीवर. No, बट what I'm saying, I'll interrupt you one second. When we are saying the sectors of the decade, हम उन सेक्टर्स की बात कर रहे हैं जो गोली की तरह से ऊपर जाएंगे. सेक्टर्स अच्छे हैं ये, मगर who will go like rockets, who will become rockets. and you don't see FMCG one of them. No, it is slow and sure. मतलब you don't see it as No, it is never that way. It can't be that way. मेरा take on FMCG would be, yeah, मैं तो honestly ज़्यादा double digit growth भी expect नहीं कर रहा FMCG से. But it's like मतलब फुटबॉल टीम में तो मैं उसको डिफेंडर ले रहा हूँ कि आई नो कि बचा लेगा मुझे. उसके बिना भी काम नहीं चल सकता. हाँ, बट जैसे अगर ओवरऑल एनालिस्ट को देखो, दे आर नॉट वेरी एक्साइटेड ऑन एफएमसीजी सेक्टर, ज्यादा नहीं एक्साइटेड. बट स्टॉक्स लाइक जैसे आईटीसी, ये आई जनरली थिंक आई वांट टू ऐड माय पोर्टफोलियो. अब मैं आईटीसी को डिस्कस करता हूँ. आईटीसी हैज मर्ज्ड मेनी बिजनेसेस इनटू इट. पहले आईटीसी पेपर सेपरेट था, इट वेंट इनटू इट. आईटीसी होटल सेपरेट था, इट वेंट इनटू इट. बट मेजॉरिटी रेवेन्यू इनका अब क्या होगा, ये कंपनी स्प्लिट होने वाली है, as we have all been talking about. अगर इसकी स्प्लिट हो गई इनटू पेपर, इनटू सेपरेट, इनटू गारमेंट्स, इनटू एफएमसीजी, इनटू दिस, तो इसकी जो वैल्यूएशन निकल के आएगी स्प्लिट के बाद में, ऑल द शेयर्स टुगेदर, इट माइट बी 3 times from what it is today right now. तो ITC is a bomb waiting to explode. Higher 3 times? Higher, 3 times higher. Lower, okay. Higher. Because सब बिजनेस की, उसको बिजनेस अलग कर दो, उसकी वैल्यूएशन अलग निकल के आएगी ना. अभी तो मर्ज होके सिगरेट्स के अंदर सब छप जाती है वैल्यूएशन. Yeah. तो इसको डीमर्ज करके इसकी अनलॉकिंग द वैल्यूएशन, अनलॉक द वैल्यू. टबैको एंड लिकर सेक्टर्स, सबको लगता है कि ये तो भाई ऑब्वियस सेक्टर है कि जो चढ़ेंगे. What is your take? So I'll tell my take. See, these sectors, I'm talking about the liquor sector, it's an ever-growing sector. अब पार्टी बिना लिकर के पार्टी नहीं कहलाती. Unfortunately, yeah. नहीं, why to say it unfortunately? It is entertainment. When you're going for a party, it's entertainment. तो उसके बिना तो पार्टी नहीं होती. 20 साल पहले तो नहीं था ना ऐसा. But जैसे हाँ, कल्चर आई वुड से थोड़ा नेगेटिव तरफ चला गया. मतलब इट्स लाइक कि no, हम तो लिकर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं. हाँ, आई नो. हाँ, to let's should we invest or not? तो it's a very bullish sector. वेरी बुलिश सेक्टर है. मेरे को तो लगता है बियर, जैसे कोक और पेप्सी बिकती है डिपार्टमेंट स्टोर में, वैसे बियर बिकनी चाहिए जैसे बाहर बिकती है. मे बी नॉट लिकर एज सच, बट बियर शुड बी देयर. तो ये होना ही होना एक चीज पे. तो आई एम बुलिश ऑन लिकर सेक्टर एंड दैट्स इट. टबैको को मुझे बताओ, क्योंकि टबैको को तो इतना गवर्नमेंट्स मतलब कंस्ट्रेंट करी जा रही है. हमारा इतना गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दिया टबैको में कि अपना आई थिंक इलीगल मार्केट ऑफ टबैको इज द सेकंड हाईएस्ट, समथिंग लाइक दिस. But tobacco, there is a lot of awareness कि smoking is not good for health. A lot of awareness has happened. पहले in my time in 2090s, everybody on the road was smoking. Yeah. But I don't see that anymore. आपको तो पापा, मेरे लिए ना टबैको लिकर सेक्टर इतना एक्साइटिंग नहीं है. I'll tell you why. क्योंकि यही पॉइंट अगर मैं ऑन द ग्राउंड देखूंगा ना, पहले था कि ड्रिंकिंग लिकर वाज कूल. अब वो कूल फैक्टर मेरे हिसाब से नहीं है. अब कोई बोलते ना आई डोंट ड्रिंक, आई रिस्पेक्ट हिम मोर, मतलब पर्सनली स्पीकिंग. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, बट नंबर्स तो बोल रहे हैं कि लिकर इंडस्ट्री इज ग्रोइंग क्लियरली. बट फॉर मी आई वुड से, और एक तो इंडियन लिकर्स, अब आईएमएफ इज डूइंग वेरी वेल. इंडियन लिकर्स बहुत सारी आ गई हैं. बट या आई एम नॉट वेरी, मतलब आई शायद इसमें, but I'll place liquor in a bullish category. Not tobacco. Not tobacco.
अपना viewpoint होता है, you know, Of course, of it's very course. biased what I'm thinking. So my feel is liquor is far more bullish than tobacco. Liquor, I would find, I think, better sectors. Or tobacco bhi, I feel Up to we it's have on the we have down attended road. parties, we have given parties, around 40% of the total party bill goes to the liquor, Unfortunately, including the food, decoration, this, that. You know, 40% तो हाँ, but मतलब, ज़्यादा हो गया, but 25-30% at a least very significant amount. mountain goes into the liquor. It's very And sad. is wedding a small thing? It's the biggest industry today. Yeah. Actually, I was reading somewhere कि liquor सिर्फ during wedding season ही बहुत बढ़ जाती है. So Okay, that's what it- तो this is done. अब FMCG सेक्टर हो गया. अब एक और सेक्टर जैसे लोग बड़ा बात करते हैं, that is AI. What do you think about that? जैसे I'll tell you, मेरे हिसाब से AI का ऐसा है ना पापा कि हर क्वार्टरली अर्निंग्स, हर अर्निंग्स कॉल पे हर मैनेजमेंट AI यूज करती रहती है, क्योंकि उसके नाम से इन्वेस्टर्स खुश जाते हैं कि हम कस्टमर AI से बढ़ा देंगे, ऑपरेशन AI से बेटर कर देंगे. और ऐसा नहीं है, AI से एक्चुअली काफी इन्वेस्टमेंट्स हो भी रही हैं ऑन ग्राउंड और फायदा भी हुआ है. बट आई फील इट्स मोर ऑफ लाइक जैसे .com बस्ट क्रैश में था ना बाप, कि हर .com लगा दो, ये दैट कंपनी इज $1 billion वैल्यूएशन, ऐसी अगले दिन हो जाएगी. आई फील AI इज मोर इन स्पेस दैट. दूसरा ये कि वी डोंट नो वेयर AI इज, मतलब अब तो TCS भी AI, इन्फोसिस भी AI, ऐसा भी AI कर ही जा रहे हैं. तो व्हाट इज द डेफिनेशन? आई फील हर इंडस्ट्री में 2-3 लीडर्स ही बनते हैं और फिर सब फॉलो करते हैं. AI में भी लॉन्ग वे टू गो. See, in 2000 जो IT boom था ना, without logic it works. या After 20 years, AI has replaced that .com boom. Yeah. Magar, which companies are really into AI? I have no clue. And I don't think so anybody has much clue. या इट्स ऑल So therefore, AI as a sector, I don't see AI as a special sector because I can't identify the company. But where in a different way, I would prefer to invest in AI sector, which is that AI sector. Those companies that are adopting AI. वो तो पापा हर कंपनी बोल रही है. हाँ, not everybody is smart enough to do that. हर कंपनी बोल तो रही है. Everybody is not smart enough. Banking में AI आ जाए full fledged, तो मेरे NPAs ही नहीं होंगे. I'll know the customer like this. So whoever adopts whoever spends a lot of money to merge in AI into the infrastructure first, fastest, without bothering about the cost, that's going to be a winner. So let us search for those companies that are incorporating AI in its operations and systems. Okay. So the answer to that is, how do we know that? The most efficient companies will become even more efficient with AIs. For example, HDFC Bank, ICICI Bank, Asian Paints. But it will take time No, to see कि कौन सी कंपनी इसे effectively use कर पा रही है. no. So these companies are competent. We can't judge so much. We can't go into the company. But I can say that there'll be many companies who will be able to incorporate and use it successfully. So the efficient companies will only be use it to become more efficient. वो तो है ही पापा. I तो feel that is an obvious outcome. But for if I want to invest in a company, जब मैं AI में बड़ा, suppose मैं optimistic हूँ and I want to invest in AI, तो I don't think I have a company. I can invest in TCS वगैरह, but वो भी We are not clear. stereotypically. We are not clear who is really working in AI. Yeah. So this is no sector. This is not a sector according to me. Yeah. So interesting talk. तो overall इसको summarize करते हैं. No, Sector. one more sector for me. बताइए. One of the good sectors is digital media and OTT platforms. You know, in 90s we were in scooters. इसमें बात करते हैं. In 90s we were in scooters. What happened after that? Automobile. Bikes came and took it over. Bikes completely wiped out the scooters. Scooters looked like a old man driving a thing. So you mean say digital media and OTT are the bikes of tomorrow? They are the bikes of today, replacing TV and print media. But Papa, don't you think social media has already done that? No. YouTube has, मतलब if I talk about me, मैं तो न्यूज़ काफी कंटेंट क्रिएटर से ले लेता हूँ जो मुझे क्रेडिबल लगते हैं स्पेसिफिकली. एंड आई नो सो मेनी पीपल जो फेसबुक और इंस्टाग्राम से जल्दी उनको पता चलता है rather than watching आज तक और इंडिया टीवी और. No. So these, okay, fine. So let's say some companies will be standing in media. Yeah. They will be getting huge advertisements. They are sponsors to OTT platforms, and these digital media are sponsors to IPLs and all these kind of matches global. All the sports are with them. So you see, to watch it on phone,
or on TV through an OTT platform or digital media, it's a replacement. It is a replacement of conventional TV and the print media. ठीक, agreed. पापा, see what I am telling you कि print media तो खत्म है. मतलब time has been very unfortunate for print media. Magazines and newspapers all are out. It's over. It's practically over. ठीक है. और वो commercial media भी खत्म ही है. Let's be finance में बात कर लो पापा. Why finance influencers have done so well? Because हमने खत्म कर दिया है collectively उनको. Right, TV. Nobody trusts CNBC. और वहाँ पे मतलब एक कंटेंट क्रिएटर आपको अपनी भाषा में, आपकी भाषा में कंफर्ट होकर अपनी तरीके से समझाता है, which is easier absorbing. That's all part of digital media, ना? But नहीं, वो YouTube और Instagram थोड़ी part, वो तो कंटेंट क्रिएटर्स वाला इकोनॉमी हो गई. No. See, what I'm saying, where will all their main income, digital media income is advertisements. Right. Advertisements will continue to flow, and there are very few companies in digital media. Very few companies. But शायद वो चाहिए ही नहीं कंपनी. पापा, content creators are becoming companies themselves. See, the only, अब मैं आपको पर्सनल बताता हूँ, the only thing where I see these companies can do well, and not digital media, OTT platforms can do well, is जब गवर्नमेंट का सेंसरशिप रूल बाहर आ जाएगा. जैसा भी लेटेंट शो, आपको पता है इसके बारे में कुछ? क्या गवर्नमेंट का लेटेंट शो के बारे में? You know, no. समय लाने का लेटेंट शो. समय लाने का लेटेंट शो था. उसने आई थिंक कुछ जोक्स उस किए थे. वो थोड़ा ए रेटेड कॉमेडी होता है, ठीक है, मतलब थोड़ा गाली गलौज से कॉमेडी होता है, एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ पीपल एंजॉय दैट शो, ज्यादातर लोग, है ना. तो रिसेंट बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, उसको बंद कर दिया. अब काफी लोग ये बोलते हैं कि उसको, अब ऑब्वियसली खड़े हो गए लोग कि कुछ लोग तो बड़ा एंटी थे कि भाई इसको बंद करो, कुछ लोग थे कि नहीं बंद नहीं, इसको बंद करने की जरूरत ही क्या है, मतलब इंडिया के लिए ये तो इशू थोड़ी है, मतलब कि शो में क्या बोल दिया, बिगर इशूज टू हैंडल. बट इसका काफी मुझे क्या लगता है कि, और जो काफी यूट्यूब इंटरनेट में भी चल रहा था, इससे मेजर रीजन बिकॉज गवर्नमेंट का एक सेंसिटिव बिल आना, वो इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, जो एक काफी हद तक बनता भी है सेंस कि मतलब इतनी मिस इन्फॉर्मेशन और फेक इन्फॉर्मेशन फैलती रहती है, तो डू कंट्रोल इट. बट वहीं पे इफ यू कंट्रोल इट तो you end up controlling everything. What is the limit? So only then I feel OTT platforms can do well. Digital media companies can do well. अब तो जो वो भी मीडिया हाउस सब डिजिटली हो गए हैं ज्यादातर. They can only do well when these censorship rules are placed, and which I feel ये किसी भी गवर्नमेंट के लिए करना बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा. This is what I think. No, but digital companies have a data bank of nearly the entire country. Digital companies, media companies, digital media companies, okay. You know, so what I mean to say that they have so many upsells with them. So I'm quite bullish to see this new media and the TV and print being wiped out already, more or less. These platforms will generate huge amount of cash in time to come. पता नहीं पापा, मेरा तो इसमें थोड़ा, अब ये भी है कि the way you are consuming content and I am consuming content, generation gap है तो पूरा different है. Maybe. Right, or I think if I talk about Gen Z, वो तो शायद उसको हमारे methods ancient लगेंगे. But I think time will tell, इसमें तो we can maybe agree to disagree. Yeah. And then the second sector is like IT. I don't agree with it because US and Europe may not do very well in the coming few years. Yeah. And we are the biggest exporters of that. IT, yeah. So IT can be left aside. And sectors that you think are the worst. एक तो जैसे FMCG we can say worst नहीं, but not doing that well. FMCG. नहीं, we have to say कि कौन सा sector outperform करेगा. Every sector grows. I know, but I want to say which sector will underperform. Let's talk about that. I think IT may underperform. IT? Yeah. Any other sector? Or IT because आप सोचोगे according to US and recession, slow economic growth outside, you know, because we are exporters, net exporters. Don't you think oil and gas will also underperform? Oil and gas, देखो, oil is going down. It's like 61 rupees a dollar, $61 a barrel or something. वो तो हाँ, US के ईरान से पार्टनरशिप हुई तो उससे हो जाएगा. तो but जितनी भी हमारी oil company है, they're going from oil to chemicals, you know, all that kind of. But GAIL ON जैसी चीजें companies कर पाएंगे? Reliance चलो मैं मानता हूँ. जैसे I personally believe कि oil and gas is a sector जो इतना outstanding नहीं है. IT I agree. Even I agree. Oil and gas also. I'm not for it. I know. But it's not my sector at all. Yeah. I mean, I won't put a penny in it. Yeah. ऐसे एक interesting sector फिर उसके बाद खत्म करते हैं. वीडियो बहुत लंबा हो रहा है. And if you're watching till now, तो thank you so much for watching till now. And एक sector पापा जो मुझे लगता है कि मैं बड़ा confused है, ऑटोमोबाइल.
I'll tell you why. अभी ये मैं तो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक हूँ ऑटोमोबाइल पे, एंड आई लव ऑटोमोबाइल सेक्टर, आपको तो पता ही है. बट अभी उनका बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट था. वो मारुति के सीईओ थे, कौन थे, भार्गव आई थिंक, आरसी भार्गव. आरसी भार्गव, यस. कि वो आई थिंक कितने सिर्फ 10% की सालाना हाउस होल्ड इंडिया में, सिर्फ 10% हाउस होल्ड की इनकम, सालाना इनकम 12 लाख है, साल की इनकम. हाँ. दैट इज 1 लाख अ मंथ. दैट इज अगेन मतलब इट्स नॉन टैक्सेबल में आता है जो टेक्निकली. तो बोल रहे हैं कि अगर किसी आदमी को मुझे 10 लाख की गाड़ी बेचनी है तो उसकी कम से कम हाउस होल्ड इनकम तो 12 लाख हो. अगर ये है तो फिर ही सेइंग कि हाउ कैन यू एक्सपेक्ट डबल डिजिट ग्रोथ, एंड लॉजिकली ही इज नॉट रॉन्ग. तो यू फील ऑटोमोबाइल सेक्टर विल नेवर हैव डबल डिजिट ग्रोथ, It will. बट हाउ वुड यू डिफाइन दिस लॉजिक? थोड़ा सा तो EV will take it over. बट गाड़ी तो महंगी होगी, चाहे ईवी लो, पेट्रोल लो, आईसी इंजन लो. No, but we have been growing in numbers. I mean, the recent 2-3 years we've not done well. The passenger cars and commercial vehicles. But you see, every sector has a phase. So, but automobile is not in my top. It's not in the list of buying for sure. जैसे मुझे लगता है, अब आप मुझे बताओ if I'm thinking correctly or No, not. no, I'm not with People it. can I'm not with automobile. I'll tell you why I find automobile, पापा, because मुझे लगता है ना, इंडिया एक शो ऑफ इकोनॉमी है और हमारे खून में है. और लोग आईफोन खरीद रहे हैं जबकि they can't even afford it, और यूज तो चलो आईफोन किसी का भी नहीं है. एंड आई फील ऑटोमोबाइल लोग खरीदेंगे, फाइनेंसिंग विद टाइम ना विल कीप ऑन गेटिंग ईजियर. इट कीप ऑन गेटिंग ईजियर. जैसे यूएस में भी आप देखोगे फाइनेंसिंग इतनी ईजी है, और इंडिया में ईजी होगा, बट तो इट कीप ऑन गेटिंग ईजियर. सो आई फील कि ऑटोमोबाइल चलेगा और 100% वो चलता रहेगा. इट विल शो डबल डिजिट ग्रोथ बिकॉज नहीं, अगर डबल डिजिट बहुत सॉलिड ग्रोथ में 10-11%, early double digit also is quite huge. या मैं लॉन्ग टर्म क्या अगर डबल डिजिट बोल रहा हूँ. But you know, But yeah. again, what I'm saying is we are discussing. I mean, you may be absolutely right. I may be also absolutely right. I have chosen these sectors as per my competence of understanding. You have to choose a sector that you understand most, na, beta. The thing is that supposing I choose a sector, let's say AI. I said AI I can't understand, so I refuse it. अगर AI में करेक्शन आएगी, unless I understand the sector, जब करेक्शन आएगी मार्केट में उस सेक्टर में, तो मैं तो घबरा के निकल जाऊंगा. सही बात है. अब मैं जिस सेक्टर में हूँ, जैसे कि आई एम इनटू मेक इन इंडिया, आई एम इन पार्ट इन टेक्सटाइल्स, आई नो हाउ द सेक्टर इज वर्किंग. 20 साल से देख रहा हूँ मैं, तो मैं घबराऊंगा नहीं. तो इफ आई वांट टू लास्ट लॉन्ग इन द स्टॉक मार्केट, अगर 10 साल की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, 10 साल टिकू तो सही में. पहले चूजिंग द सेक्टर इज जस्ट 10%. चूजिंग द राइट कंपनी इज अनदर 2%. 90% is how I am able to handle the journey, how I am able to handle the correction. और वो तब होगा when we are able to handle, when we understand that sector. कि भैया ये करेक्शन है, ये इंडस्ट्री तो ऊपर जानी आनी है. तो अपनी अपनी कोर कॉम्पिटेंस होती है. वन शुड स्टिक टू इट्स कोर कॉम्पिटेंस. शार्क टैंक फर्स्ट सीजन तो आपने हम सब ने देखा था, इफ यू रिमेंबर. हाँ, उसमें जो नमिता थापर कहता ना, दिस इज नॉट माय एक्सपर्टीज, आई एम आउट. मुझे वो बहुत ब्रिलियंट लगता है. एंड आई थिंक स्टॉक मार्केट में वन शॉट सेम अप्रोच. या एग्जैक्टली. जो भी तुम्हारा सेक्टर, तुमने जहाँ पे जॉब किया हो, मान लो योर फादर हैज बीन इन दैट लाइन or he's been in that job. और बेसिक धंधा समझ आता हूँ, सप्लाई चेन क्या है. जैसे मुझे बायोकेमिस्ट्री और स्पेशलिटी केमिकल्स तो मैं ले भी नहीं सकता, तो मुझे लेने ही नहीं वो सेक्टर. या इट्स नॉट पॉसिबल. या दैट्स व्हाट इट इज. तो जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रहा है हमारा, मैं तो अपने हिसाब से बता रहा हूँ जो सेक्टर्स मेरे हिसाब से चलेंगे. मे बी देयर आर अदर सेक्टर्स आल्सो दैट विल वर्क, बट दीस 4 sectors that I'm talking about, make in India, stock broking and capital markets. And then I said about the third one was what do you call the renewable energy, alternate energy. I think these sectors will work. That's according to my core competence. So it's very important to do what you know here. Yeah. If you're trying to do something that you don't know, then if you're a footballer trying to play hockey, how is it possible? So therefore these sectors are good according to me. And जहाँ पे भी interest हो, उस sector में study करना चाहिए हमें. उस sector के best 3-4 कंपनीज को निकालना चाहिए. Got it. And by the appropriate time. Got it. ठीक है, I think काफी लंबा हो गया है. So thank you so much. तो I hope you liked it. अगर आप अभी तक देख रहे हो तो एक लाइक तो बनता है. And the comment box tell us what other things you want, and tell us कि you who do you agree with, and if you disagree with both of us तो वो भी हमें comment box में जरूर बताना, because ultimately यहाँ बात opinions की हो रही है. Yeah. And that's it. So keep supporting us, keep liking the video, and we are going to come out with a lot of more interesting topics.